Hello friends, myself Rasmi Patel. Today we continue our lesson number 2. So I will explain your difficult meaning, read a story for you. As well as in last video, in part 2, I collect few words and make a sentence. Also I send sentences you wrote down and make using this word, underline words, make new sentence on. So first I take a words loyalty and form a sentence. He showed unswearing loyalty to his friend. He showed unswearing loyalty to his friends. Using also loyalty words, I form another sentence form. It is rare to find such loyalty these days. It is rare to find such loyalty these days. Okay. I take a second words, rights, and form a sentence. People are gradually awakening to their rights. People are gradually awakening to their rights. I take another new words, courage, and form a sentence. Take one's O-N-E apostrophe S, take one's courage in both hands. Take one's courage in both hands. New words, conquer. Conquer means win. And form a sentence. Truth will conquer. Truth will conquer. As well as sacrifice word, I take and form a sentence. And Sullivan sacrificed his eyes for her student. And Sullivan sacrificed her eyes, and Sullivan sacrificed her eyes for her student, and student name is Helen Keller. Okay. So we will start our lesson. Okay. Here we stop a few moments. I will read, I will explain a difficult meaning and tell a story. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. In awe, in awe means surprise. In awe means surprise, and spectacular array, and spectacular array means an impressive display, colorful and attractive. Means array means pattern. तो अब इन अ फ्यू मोमेंट, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, वहाँ पे जो लोग खड़े थे, मीन्स वर्ल्ड लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स, डिग्निटरीज, वो सब ने अपने फेस को लिफ्ट किया और वो देख रहे क्या, तो अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स जो थे, जो यूनियन बिल्डिंग एम्पिटेटेड था, उसके ऊपर एक परफेक्ट फॉर्मेशन में अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग कर रहे थे और वो खुशी बता रहे थे जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री हुई थी साउथ अफ्रीका. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. और वो precision means perfect accuracy. Okay.
तो एक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ, प्रेसिशन के साथ वो डिस्प्ले कर रहे थे, और जो मिलिट्री फोर्स थी वो डेमोस्ट्रेट कर रही थी कि ये जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको डेमोस्ट्रेट कर रही थी, और वो बता रही थी कि हम इस जो न्यू गवर्नमेंट बनी है उसके साथ ही हम उसे सैल्यूट कर रहे हैं। तो उसको वो इंकरेज कर रहे थे इस गवर्नमेंट को। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स and police that chased Badek with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. Badek, Badek means a decorated and ornated, एक वर्दी का हिस्सा होना। तो जो डिफेंस फोर्स थी, पुलिस थी, उसके जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, मेन ऑफिसर्स, उसके जो यूनिफॉर्म थी वो डेकोरेटेड थी। किससे? तो जो उन्होंने पहले जो लड़ाई लड़ी थी, स्ट्रगल की थी, उसके अंदर जो उन्होंने मेडल मिले थे, तो उसकी चेस्ट वो बैडक से लगी हुई थी। तो बैडक के ऊपर क्या होता है, मेडल्स या फिर रिबॉन से लगी हुई थी, और वही लोग नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे और उससे प्रॉमिस, प्लेज मीन्स प्रॉमिस, और नेल्सन प्रॉमिस कर रहे थे कि अब इस न्यू मेड गवर्नमेंट जो है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है, उसको हम सैल्यूट कर, लॉयल्टी दिखा रहे, हम उसकी वफादारी दिखा रहे थे कि हम इस नई बनी गवर्नमेंट के साथ हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have salute but arrest me. Not unmindful means conscious of या aware of। तो मैं ये नहीं भूला हूँ कि यही लोग जो कुछ साल पहले मुझे क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, जो लोग आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं वही लोग मुझे अरेस्ट करते थे, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे वो अपार्टी सिस्टम के अगेंस्ट वो लड़ रहे थे। वो जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट्स थी उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उसको विड्रॉ कर रहे थे, इसलिए वही ऑफिसर्स जो थे नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर रहे थे। पर वही जो ऑफिसर्स है वो आज उसे सैल्यूट कर रहे हैं, तो मैं ये भूला नहीं हूँ। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Chevron means a pattern in the shape of a V, means a zigzag pattern like this in V formation. तो इम्पला जेट्स जो थे वो जो न्यू अफ्रीकन फ्लैग है उसके अंदर जो कलर्स है उसी कलर्स के जो धुएं छोड़ते हुए जो इम्पला जेट्स थे वो वहीं से पसार हुए थे। और वो कौन से कलर्स छोड़ रहे थे जो अफ्रीकन फ्लैग में, तो लाइक ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। जैसे हमने देखा है कि हमारे इंडिया में जो नेशनल फ्लैग है वैसे जेट्स जो है ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर के जो धुआं छोटे, वैसे ही जेट्स जो है वो अफ्रीकन फ्लैग के रंग के धुएं छोड़ रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Kosi Siglele E Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. तो symbolize for means remember। तो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि मुझे याद है कि उस दिन जो थे 10 मई 1994 के दिन दो नेशनल एंथम हुए थे, और कोई भी नेशनल सेरेमनी हो तो वहीं पे नेशनल एंथम होता है। तो वैसे ही साउथ अफ्रीकन सॉइल पे भी दो नेशनल एंथम होते, एक वाइट पीपल के लिए और एक ब्लैक पीपल के लिए। वाइट पीपल के लिए कौन सा नेशनल एंथम शुरुआत सिंगिंग किया गया था, तो कोसी सिकले ई अफ्रीका, और ब्लैक पीपल के लिए डाई स्टेम। दो नेशनल एंथम सिंगिंग हुए थे।
Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despise means हम कह सकते हैं डिसलाइक या फिर हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ. तो वहीं पे जो लोग थे उन लोगों को, वाइट लोगों को ब्लैक और ब्लैक को वाइट का जो नेशनल एंथम था उसकी लिरिक्स पता नहीं थी. पर बाद में जैसे जैसे समय निकलेगा तो वैसे वो लोग उस नेशनल एंथम का जो वर्ड्स है वो दिल से मान लेंगे, वो उसे समझ लेंगे, वो जान लेंगे. On the day of the inauguration, I would overwhelmed with a sense of history. Overwhelmed means emotion या फिर thought. तो उस दिन 10 मई 1994 के जो इनॉग्रेशन डे था उस दिन नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने जो उसके पास्ट डेज थे वो उसमें चले जाते, वो याद करते उसकी हिस्ट्री और उसके बारे में सोचते. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and erected a system of racial dominations against the dark-skinned people of their own land. Patched means accept, or racial dominations means arrive first Dutch people, जिसे कहते हैं नस्लवाद कह सकते हैं हम. ओके, तो the first decade of the 20th century. 20th मीन्स कौन सा पीरियड? तो 19 से लेके 1910 का ये जो पीरियड है उसे फर्स्ट डेकेड, 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड. तो डेकेड कब बनता है? तो 10 ईयर को मिला दे, हमने कल ही बात की थी लास्ट वीडियो में. ओके, तो 10 ईयर का पीरियड होता है, वन डेकेड कहते हैं. तो फर्स्ट डेकेड कौन सा बनता है? 20th सेंचुरी का. तो 1900 से लेकर 1910 का उसके बीच एक वॉर हुई थी, एंग्लो वॉर, और अफ्रीकन और डच पीपल के बीच, ओके, वाइट पीपल के साथ. उसके अंदर एंग्लो वॉर थी, उनमें वाइट पीपल ने वो वॉर जीत ली थी. उसके जो वॉर हुई थी वो नेल्सन मंडेला के बॉर्न से कुछ ईयर पहले हुई थी और उन्होंने इस जो अफार्डिस सिस्टम है वो लागू कर दिया था, जिसकी वजह से वहीं पे एक सिस्टम बनी हुई थी रेशियल डोमिनेशन, जिससे डार्क स्किन पीपल के लोगों को उसकी ही लैंड पे उसके हक से, राइट से उसे दूर किया गया था. The structure they create formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. तो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई थी, नॉन रेशियल स्ट्रक्चर साउथ अफ्रीकन सिस्टम में, गवर्नमेंट में, तो सबसे कैसी थी? तो मोस्ट इनह्यूमेनियंस थी, मीन्स अमानवीय बनी हुई थी. वो सब जानते, वो ऐसी हार्वेस्ट सोसाइटी बनी हुई थी. नाउ इन द last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their skin. So now in the last decade of the 20th century, means last decade of 20th century means कौन सा पीरियड? तो 1991 से लेके 2000 तक का जो ये पीरियड है उसे लास्ट सेंचुरी. और नेल्सन मंडेला किस ईयर की बात करें? तो 1994 की बात करें, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था और अपार्टheid सिस्टम को दूर किया गया था, उस दिन की बात करें. तो नेल्सन मंडेला के मैं खुद किस डेकेड में था? 8 डेकेड्स में. मीन्स नेल्सन मंडेला के ईयर कितने हुए थे? 80 ईयर्स का था, तब की बात कर रही है. तब ये जो अपार्टheid सिस्टम हुई थी वो दूर हुई थी. इसकी वजह से जो स्किन ब्लैक पीपल थे उसको भी उनका हक मिला था. तो कोई भी ऑल पीपल्स के लिए वो ऑल राइट्स थे और
ऑल फ्रीडम्स थी। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. Felt that day, as I have on so many others days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Patriots means जो कहते हैं आज़ादी के लिए जो लड़े, फ्रीडम फाइटर्स मीन्स पैट्रियट्स, फ्रीडम फाइटर मीन्स पैट्रियट, तो अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स। तो नेल्सन मंडेला जो उसकी पास की बात याद करें, जो उन्होंने स्ट्रगल की थी वो उसके बारे में, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे थाउजेंड्स पीपल है जो मेरे कंट्रीज के, मेरे जो 1000 पीपल हैं, उन्होंने इनविजिबल सेक्रीफाइस किए, जो इस लड़ाई के लिए लड़े, उन्होंने कि क्या सफ़र किया है, क्या करेज लिया है, वो अनकाउंटेबल है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। और वो जो आज़ादी मिले उससे पहले वो वह आज़ादी को देखने के लिए नहीं थे। That long and noble line ended and now begun again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. Wrought means fashioned, formal, done and achieved. तो जो उन पैट्रियट्स जो फ्रीडम फाइटर, साउथ अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसके लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, ठीक है। वो आज़ादी को, इस दिन को देखने लिए प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। पर मैं उन लोगों का धन्यवाद भी नहीं कर सका कि उन्होंने सेक्रीफाइस करके क्या अचीव किया है, क्या डन किया है। जो आज साउथ अफ्रीकन सॉइल है वो आज़ाद हो चुकी है, अपार्टheid सिस्टम से मुक्त हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। The people of apartheid create a deep and lasting wound in my country and my people. जो ये apartheid सिस्टम थी, ये पॉलिसी थी, वो लंबे समय तक चली, मीन्स अराउंड 100 ईयर्स तक चली। तो ये 100 ईयर्स में जो मेरे पीपल्स, मेरी कंट्री ने जो वुंड मीन्स घाव से वो लंबे समय तक चलेंगे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग। और अफार्ड सिस्टम की वजह से जो मेरी कंट्री, मेरे पीपल ने जो सहा है, वो ऐसे तो नहीं निकल सकता, वो लंबे समय तक उसको सफ़र करना होगा। बट द डेकेड्स ऑफ oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that proceed the Oliver Thambos, the Walter Sislers, the Chief Lutelis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukovs of our times, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that the like may never be known again. तो ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको दिखाया गया है, ओके। ये जो फ्रीडम फाइटर्स, तो उसके ऊपर इस डेकेड्स में कितने ब्रूटलिटीज हुई थी, क्रूअल तरीके से उसे बनाया गया, कितनी इफेक्ट्स हुई थी, और फिर भी वो लोग उस लड़ाई से बाहर निकल गए। और उसकी जो धैर्य है, करेज है, करेज और विजडम और जेन्युइनिटी उन्होंने दिखाई इतनी स्ट्रगल के बाद भी। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। परहैप्स मे बी, ओके। पर अपने अंदर की जो कैरेक्टराइजेस, अपने अंदर के जो कुछ निकालना हो, क्या तो कुछ अच्छी बातें, हमारे अंदर की स्ट्रेंथ हमें पहचान नहीं हो, तो हमें ऐसे ऑपरेशंस मीन्स अत्याचार हमें ऊपर हो, क्या कुछ ऐसी सिचुएशन आए, तभी हम हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को हम पहचान सकते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड जेम्स that lie
beneath its soil, but I have always known that its great wealth in is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका जो है मिनरल से रिचेस्ट कंट्री है, तो उसकी जो लैंड है उसके अंडर रो डायमंड्स हैं, ओके, वो हम सब जानते हैं। पर नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, हमारी कंट्री जो मिनरल से सॉइल के बेनेट के अंडर मिनरल से जैम से, फिर भी हम हमारे जो असली प्योरेस्ट डायमंड है वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के पीपल है। It is from these commodities in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Commodities means collect, साठी। तो मैंने कहाँ से सीखा है स्ट्रगल और करेज, स्ट्रगल करना और करेज। तो मेरे जो पीपल्स, मेरे जो साथी थे, उन्होंने मुझे सिखाई थी करेज, धैर्य कैसे रखना है, ओके। और टाइम एंड अगेन, जैसे जैसे टाइम निकला, जैसे मैन और वुमेन थे, एक आइडिया के लिए कितने रिस्क लेते, अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। मैन एंड वुमेन वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते, कोई भी आइडिया को पार पाने के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेशंस that defies the imaginations. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship or recover from its effect, and stand up means to face, सामना करना। तो मैंने ऐसे मैन एंड वुमेन देखे हैं जो किसी भी तरह की उसके ऊपर अटैक हो, किसी तरह के टॉर्चर किया जाए, उसे अत्याचार किया जाए, तो वो टूटते नहीं है, विदाउट ब्रेकिंग, टूटते नहीं, सोइंग, वो अपनी स्टैंड दिखाते रहते, अपनी हिम्मत दिखाते रहते, और किसी तरह की हार्डशिप हो, उसकी जो एबिलिटीज़ है और इमेजिनेशन है उसको चैलेंज देते हैं कि हम टूटते नहीं हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। और जो एक करेज है वो एक डर के मारे, डर नहीं है, पर वो डर की एब्सेंस है, जब जाके हमें धैर्य मिल जाए, तो हम जब शांत हो जाए, धैर्य, हम करेज मिलते हैं, करेज रहता है, तो हमारा डर नहीं है, पर हमने डर के ऊपर जीत हासिल की हुई है, ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री। तो हमारी इस जीत के ऊपर इस फियर के ऊपर हमारी विक्ट्री है, इसलिए हम करेज रख सकते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही वॉज कॉन्क्वेर्ड दैट फियर। कॉन्क्वेयर मीन्स विन। तो ब्रेव मैन कौन होता है? तो जिसने जीत के ऊपर अपना डर के ऊपर जीत हासिल कर ली हो, वही एक ब्रेव मैन होता है, और कभी भी डर को फील नहीं करता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religions. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human hearts than its opposite. तो कोई भी न्यू बॉर्न बेबीज जो होता है, न्यू बॉर्न पीपल्स, तो वो जबकि उसका बॉर्न होता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो कैसे कलर स्किन से, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका रिलीजन कैसा है। तो जब भी कुछ भी से सिखाया नहीं जाता है, पर जब वो यहाँ आता है तब उसे हेट के बारे में बताया जाता है कि इस पीपल को हेट करना है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ओके। कि और जैसे हम यहाँ के हेट्स के बारे में सीखते हैं, वैसे हम जो सीख सकते हैं, तो वो हम क्या सिखाना चाहिए? लव। क्योंकि लव जो एक नेचुरली है ये ह्यूमन हार्ट्स के अंदर, तो हमें किसी भी पर्सन को, न्यूबॉर्न बेबी को हमें हेट्स के बारे में नहीं बताना, उसको हमें लव्स के बारे में बताना, तब जाके वो जो सिस्टम है वो दूर होगी, हमारी जो सोच है, मीन्स सोच है, वो दूर हो सकती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, व्हेन माय comrades and I were pushed to our limits,
I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Okay. Grimmest means अनप्लेजेंट सिचुएशन या फिर टफेस्ट। जब नेल्सन मंडेला और उसके जो कमांडर्स मीन्स साथी जो थे उसको एक प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर पुश किया जाए उसके और उसे टॉर्चर किया जाए, तो वो अपनी हिम्मत हार दे रहे। बट उन गार्ड्स जो थे, उसी गार्ड में से किसी एक पर्सन ने एक थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखा दी, थोड़ी मानवता दिखा दी। तो इसी क्षण, इसी सेकंड में नेल्सन मंडेला कह रहे कि हमें हिम्मत मिल रही थी, हम उस और वो ही एक सेकंड ही हमें काफ़ी थी हमें एक हिम्मत देने के लिए, और हम इस स्ट्रगल को फिर से लड़ने के लिए हमें स्ट्रेंथ मिलती थी। तो आज तो लगता वो उसे खातरी कर सकते, इससे और कर सकते कि आज भी इस दुनिया में, इस देश में क्या है, एक मानवता है। मीन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो मेंस के अंदर की जो गुडनेस है, उसके अंदर की जो मानवता है, वो एक फ्लेम की तरह है। वो थोड़ी देर के लिए हाइडेड हो सकती है, छुप सकती है, पर बुझ नहीं सकती। नेवर बी एक्सटिंग्विश, कभी भी बुझ नहीं सकती। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझ जाना। तो ये जो लेसन है हम यहाँ तक देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।